Okay, so amino acids, proteins, enzymes, and nucleic acid. These 4 biomolecules are done. Perfect? Yes, sir. Yes, So sir. today we are going to start carbohydrates. Right? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. चलिए मेरे साथ लिखते चलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स. Point number 1. Just a minute. Most abundant organic molecule. Most abundant organic molecule. Point number 2. Composed of CHO. Composed of CHO. That means what? That means what? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन. Carbon, hydrogen, oxygen. और जो रेशो होता है that is what? In the ratio of, कोई बताएगा? In the ratio of CnH2nOn. Perfect. Perfect. जितना कार्बन उतना ऑक्सीजन, उसका डबल हाइड्रोजन. Agree? Chemically they are polyhydroxy. Chemically they are polyhydroxy aldehyde, polyhydroxy aldehyde और ketones. Polyhydroxy aldehyde और ketones. Point number 4. कीटोन की जहां तक बात है तो ग्रुप होता है बच्चों C डबल बॉन्ड O, और एल्डिहाइड की जहां तक बात होती है तो ग्रुप होता है CHO. I hope you know this. Yes. Okay. Sugar word is used for the carbohydrate that are soluble in water and sweet in taste. Noted? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, since carbohydrate क्या है, मैक्रो की माइक्रो क्या लगता है? Macromolecule. If it is macro, so what do you think? In which fraction it should be present? Acid soluble or insoluble? Insoluble. 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 Since it is a macromolecule, therefore present in acid insoluble pool. Acid insoluble pool. ओके. अब बच्चों क्या हुआ, जितने भी पॉलीमर्स हमने पढ़े सबके हम लोगों ने बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी मोनोमेरिक यूनिट पढ़ी. एम आई राइट? प्रोटीन की मोनोमेरिक यूनिट क्या थी? अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड. डीएनए की मोनोमेरिक यूनिट क्या थी? न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड. परफेक्ट. ऐसे ही अब इसकी भी हम देखते हैं. तो
इसको लिखने में कोई समस्या नहीं है। सो एनसीईआरटी monosaccharides are the building blocks. Its building block. Monomer is monosaccharide. Saccharide मतलब saccharine, sugar, mono मतलब single. In polymeric form, it is either homopolysaccharide or Heteropolysaccharide. and I hope you know the definition. Anyone logically? Homopolysaccharide means all Homopolysaccharide the means saccharides are same and hetero Perfect. means होमोपॉलीसैकेराइड में क्या होगा दोस्तों? सारी जितनी भी मोनोसैकेराइड्स की यूनिट होंगी वो कैसी होंगी? same. और यदि वो पॉलीसैकेराइड है तो कैसी होंगी? Different. डिफरेंट. परफेक्ट, वेरी गुड. अब ओवरऑल क्लासिफिकेशन पर आते हैं. केमिकल बेस और स्ट्रक्चरल बेस. केमिकल बेस और स्ट्रक्चरल बेस. केमिकल बेस की बात करते हैं तो मोनो, ओलिगो और पॉली. मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड. स्ट्रक्चरल बेस की बात करते हैं तो इसमें कुछ टर्म्स मैं आपको बताऊंगा, लाइक एनोमर्स, एपीमर्स, डी एंड एल आइसोमर्स और एक डी एंड एल आइसोमर्स. देखिए कितना फर्क है. एक जगह कैपिटल डी और कैपिटल एल लिखा है दोस्तों और एक तरफ स्मॉल डी और स्मॉल एल. दोनों ही फर्क है ना. अब केमिकली बात करते हैं मोनोसैकेराइड तो इसको सिंपल शुगर कहते हैं जो दो टाइप की हो सकती है. मोनोसैकेराइड सिंपल शुगर जो दो टाइप की हो सकती है, एल्डोज शुगर एंड कीटोज शुगर. एल्डोज शुगर एंड कीटोज शुगर. एल्डोज शुगर कौन सा ग्रुप होगा? अभी बताया था. और कीटोज शुगर में कौन सा होगा? अंडरस्टूड? Yes, sir. कीटोन होता सी डबल बॉन्ड ओ और यदि एल्डिहाइड है तो CHO. एल्डोज शुगर और कीटोज शुगर. ठीक है, पहले इतना नोट करो फिर मैं आगे को और बड़ा करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ. Excuse me, sir. यस, एक्सक्यूज. Sir, 7 point explain करो ना वापस. हु आस्क्ड? Sir, कांचन. कांचन. इन पॉलीमेरिक फॉर्म यदि भाई कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं तो इट्स अ पॉलीमर. कांचन, अग्री? Yes, sir. If it is polymer, so it is formed of monomers. Agree? Yes. So if the monomers are same, like X plus X plus X plus X plus X and forming a polymer, then it is what? Homopolysaccharide.
polysaccharide. But if we are joining glucose plus fructose plus galactose plus mannose, like ऐसा जोड़ते जा रहे हैं, then it is what? Heteropolysaccharide. Understood? Yes, sir. In the same way, like protein, if you are adding leucine plus leucine plus leucine plus leucine plus leucine plus leucine so many times, it is what? Homopolymer. And if it is leucine plus isoleucine plus proline plus valine plus glutamic acid plus all what and what not, these type के amino acids सारे जोड़ देते हैं, then it is what? Heteropolymer. Agree? Yes, sir. Perfect. Sir, हाँ जी बोलो. sir, the classification is of carbohydrates or saccharides, chemical structure. फिर से. Sir, the classification is of carbohydrates or saccharides. Classification is what? Sir, this chemical base or structural base classification is of इसको carbohydrates or saccharides. अरे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट भाई सेम बात है, वो कार्बोहाइड्रेट्स. क्लासिफिकेशन फॉर कार्बोहाइड्रेट्स. पांडे जी, ओके. Yes, sir. ओके, इतना नोट करो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं. नोटेड? Yes, sir. Just a second, sir. यस यस, वेटिंग, नो प्रॉब्लम. Excuse me, sir. यस, एक्सक्यूज. Sir, these groups CHO and C double bond O are attached to the structure of the carbohydrate. यस, बता रहा हूँ ना, वो स्ट्रक्चर पे भी आता हूँ बेटा. ये कीटोन कहाँ जुड़ता है और एल्डिहाइड कहाँ जुड़ता है वो बता रहा हूँ, ताकि आपको एक स्ट्रक्चर में पूरा बताऊंगा. ये लिखा ना मैंने, स्ट्रक्चरल वेज, तब आपको और क्लियर हो जाएगा. प्रवीण, Okay, sir. ओके. चलिए बड़े आगे, इसे मिटाऊं. Yes, sir. ओके. देखिए, हम लोग किसका कर रहे थे क्लासिफिकेशन? कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन. कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन मैंने दो चीज बताई. कौन सा? Chemical base, केमिकल बेस्ड एंड structural base. not at all given in NCERT, but since we are Proud resonite. resonite, so we should know chemical base. There are three part classes. One is what? Monosaccharide. Monosaccharide, Saccharide, oligosaccharide, and Polysaccharides. Polysaccharides. polysaccharide. Polysaccharides. मोनोसैकेराइड्स मैंने आपको दो शुगर बताई. कौन कौन सी? एल्डोज शुगर, Aldose, Ketose sugar. कीटोज शुगर. एल्डोज शुगर में कौन सा ग्रुप होगा? एल्डिहाइड. और कीटोज में कौन सा होगा? C double bond O. परफेक्ट. परफेक्ट. Yes, sir. Yes, sir. यस, आपको इसमें एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए. जो ग्लूकोज है वो किसका एग्जाम्पल है? Mono. Aldose, Aldose. एल्डोज. ग्लूकोज. और फ्रुक्टोज किसका एग्जाम्पल है?
Ketose. कीटो शुगर का Ketose. को नोट कर लीजिए एग्जाम्पल के साथ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगो का मतलब होता है बच्चों फ्यू। ऑलिगो का बेसिक मतलब होता है फ्यू। अब जैसे क्या है, इसका जो केमिकल बेसिस पर किया गया है, उसमें जो मेन क्राइटेरिया था, व्हेन डिसॉल्व इनटू वाटर, जब पानी में घोला जाएगा, किसी भी ऐसे इसको पता लगाना हो कि वो मोनोसेकेराइड है कि ऑलिगो की पॉली, जस्ट डिसॉल्व इट इनटू वाटर। ध्यान से सुनिएगा, just dissolve it into water. If this substance is breaking down itself into two monomers, then it is disaccharide. If it is break down into three monomers, then it is trisaccharide. Disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide, pentasaccharide. तो 3, 4, 5, 7, 8, 10 तक तो हम उसे क्या कह देते हैं, ऑलिगो। बट ग्लूकोज को डिसॉल्व कीजिए दोस्तों, व्हेन यू डिसॉल्व द ग्लूकोज, दिस ग्लूकोज विल नो फर्दर डिकम्पोज, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट ही ग्लूकोज। ग्लूकोज और छोटी यूनिट में नहीं टूटता है भाई। यदि आपने किसी सब्सटेंस को, सपोज आपने घर की चीनी मतलब अपनी साखर जो चाय में हम डालते हैं, उस शक्कर को जैसे ही आप डिसॉल्व करते हैं तो यू फाइंड 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज और 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड। जब आपको 2 यूनिट मिलती है मोनोसेकेराइड की, तो वो क्या हुआ, डाइसेकेराइड। तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ये सब किसमें आएगा बच्चों, ऑलिगोसेकेराइड। बट इफ यू फाइंड नो मोर प्रोडक्ट, नो मोर मोनोमर्स, ग्लूकोज को डालोगे तो और उससे छोटी यूनिट नहीं मिलेगी, वो ग्लूकोज ही रहेगा, तो वो कौन सा हुआ, मोनोसेकेराइड। Monosaccharide. After dissolving into water, no more monosaccharide units are obtained, then it is monosaccharide. If 2 or more unit obtains, it is disaccharide or oligosaccharide. If more than 5, 10 units along with some other derivatives, other non-sugary derivatives, then it is what, polysaccharide. Understood? Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर तो ऑलिगो फ्यू करके मैं लिख देता हूं, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रा, पेंटा, एटसेट्रा। अग्री? डाइसैकेराइड का एग्जांपल अपने पास क्या है, घर में जो अवेलेबल होता है, सुक्रोज, लैक्टोज। अग्री? अग्री? Yes, sir. Yes, sir. पॉलीसेकेराइड जो है, पॉलीसेकेराइड on dissolving into water, it gives many units, many monomeric units along with some other derivatives. वो क्या कहलाएगा, पॉलीसेकेराइड। लाइक पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल देने के पहले मैं आपको होमो और हेटेरोपॉलीसेकेराइड बता दूं। परफेक्ट। होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड। एनसीईआरटी में आपके एग्जांपल्स दिए गए हैं होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड के। लाइक होमो का दिया गया है सेलुलोज, इन्युलिन, और हेटेरो का दिया गया है अगार। परफेक्ट।
होमो में एक और अभी देखा मैंने एनसीईआरटी में आपका काइटिन दिया गया है, एक और शायद ग्लाइकोजन दिया गया है, इधर पे म्यूकोपॉलीसैकेराइड दिया गया है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड नाम से ही समझ में आ रहा है। देखो म्यूकस, यहाँ पर म्यूसिन है, यहाँ पर अगार है, ये सारे के सारे एक यूनिट के बने हैं, ये एक से ज्यादा यूनिट के बने। नोटेड? Yes, sir. परफेक्ट। Yes. और यदि मुझे मिल गया तो शायद मैं भी आपको एक और, यस आई कैन शेयर वन टेबल, आई गॉट इट, जस्ट आई एम शेयरिंग। With some examples. Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा उसको अलग तरीके से बताया है, कुछ शुगर्स बता दिए और एक नॉन शुगर, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा था ना बोर्ड पर लिखते समय कि मोनोमर के अलावा कुछ और भी डेरिवेटिव्स देते हैं तो उसकी वो मिठास खत्म हो जाती है, तो वो नॉन शुगर की कैटेगरी में आ गए। तो होमोपॉलीसैकेराइड, हेटेरोपॉलीसैकेराइड और कॉन्जुगेटेड पॉलीसैकेराइड। तो हेटेरो में दिया है अगार और होमो में दिया है स्टार्च। देखिए एक और एग्जांपल अपने को मिल गया, होमो में स्टार्च, हेटेरो में अगार लिखा ही था, और कॉन्जुगेटेड एक और अपन कैटेगरी बढ़ा लेते हैं, अभी बढ़ा लीजिए तुरंत। कॉन्जुगेटेड में ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, पॉलीसैकेराइड के जो है वो 3 फॉर्म हो गए, होमोपॉलीसैकेराइड, हेटेरोपॉलीसैकेराइड और द थर्ड वन इज कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड में एग्जांपल आपको दिए गए हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब देखो ग्लाइको प्लस प्रोटीन्स, कॉन्जुगेट में क्यों से नॉन शुगर कहा गया? भाई ग्लाइको आई अग्री कि वो मीठा होगा, प्रोटीन क्यों मीठा होगा यार? भाई जब प्रोटीन मीठा नहीं होगा, इसीलिए तो यहां इसको कंपाउंड को जो रखा गया है, यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें जो नॉन शुगर की कैटेगरी में रखा गया है वो किसको रखा गया है बच्चों? Polysaccharide. 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 नाम से ही समझ, मैंने जब आपसे कहा कि ये पॉलीसैकेराइड है, मतलब ये कई सारी यूनिट देगा सैकेराइड की, प्लस अदर डेरिवेटिव भी देगा, लिखा अपन ने, am I right? Yes, sir. Yes, sir. हमने दो कैटेगरी बना दी डॉक्टर्स, होमो और हेटेरो। भाई जो दो सेम यूनिट होंगी वो होमो, नहीं होंगी हेटेरो। बट यहाँ पर कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड मतलब एक से ज्यादा, मतलब शुगर के यूनिट के अलावा भी कुछ है, इसीलिए तो ये नॉन शुगर है। अब उसमें क्या दो चीजें, एक यदि आप देख रहे होंगे तो ग्लाइको और दूसरा देख रहे होंगे तो प्रोटीन, समझे? वन हुआ ग्लाइको और एक हुआ प्रोटीन। तो ग्लाइको प्रोटीन, भाई ग्लाइको मतलब तो ग्लूकोज समझ में आ, तो वो तो शुगर होगा, लेकिन प्रोटीन के उसके ऐड हो जाने की वजह से वो कैसा हो गया? Non-sugar. Non-sugar. हमने और ऐड कर दिया, तो ये एक अच्छी चीज मिल गई। रहा सवाल रेस्ट में मोनोसैकेराइड हमने लिखा है एल्डोज कीटोज, हमने एग्जांपल्स भी लिखे हैं ग्लूकोज फ्रुक्टोज, एक को एल्डिहाइड शुगर कह दिया, एक को कीटोन शुगर कह दिया। डाइसैकेराइड में हमने सुक्रोज, ट्राइसैकेराइड में रैफिनोज, टेट्रासैकेराइड में स्टाइकाइलोज, पेंटासैकेराइड में डीएनए की अरे बहुत बढ़िया याद आया बच्चों। यहां पर आप मुझे बता सकते हो क्या होगा या क्या कहोगे? लाइक यदि यहां पर टेट्रा के आगे मैं पेंटा कर देता तो क्या आप मुझे कोई आप में से एक इस पेंटोज शुगर का नाम बता सकता है क्या? डीएनए। परफेक्ट, परफेक्ट। अरे डीएनए और आरएनए शुगर कैसी शुगर थी? Pentose. 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 Agree?
एक चीज गड़बड़ होगी, लेकिन एक चीज गड़बड़ होगी दोस्तों, यहां पर मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल अपनी बात को ही डिनाई करूंगा, क्योंकि एक गलती मुझसे हो गई। मुझे वो 5 कार्बन है, वो ऑलिगोसैकेराइड नहीं है, वो 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन वाला तो क्या होगा भाई? देखिए, यहां ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6. 6। फ्रुक्टोज में कितने कार्बन होते हैं? 6. 6। Six. ऐसे ही यहां पर एक और मैं शुगर बता रहा हूं जिसमें कितने कार्बन हैं? 5. 5. 5। और वो शुगर कौन सी? पेंटो डीएनए शुगर। शुगर, पेंटो शुगर या पेंटो, डीएनए पेंटो। शुगर, आरएनए शुगर। वो ऑलिगोसैकेराइड तो तब होगी, कोई भी चीज ऑलिगोसैकेराइड बच्चों तब होती है जब वो एक से ज्यादा यूनिट में टूटती है, यानी x प्लस एक्स। यदि ऐसा है तो वो ऑलिगोसैकेराइड होगी, मोनोसैकेराइड और ज्यादा डिवाइड नहीं होती। अंडरस्टूड? Yes, sir. अंडरस्टूड? परफेक्ट, Yes. परफेक्ट, परफेक्ट। चलिए, नोट कर लिया बच्चों यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और कोई डाउट हो तो मुझे बताइए यहां तक, अदरवाइज फिर अपन इसका दूसरे पार्ट पर जाएं। या मोनोसैकेराइड में कुछ फॉर्मूला बेस्ड और तो मुझे लगता नहीं। मोनोसैकेराइड के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं। मोनोसैकेराइड के लिए फॉर्मूला NH2NON। अग्री? Yes, sir. Yes, yes. एक और बात यहां लिख दूं, मोनोसैकेराइड के लिए डू नॉट अंडरगो more hydrolysis, do not undergo more hydrolysis। भाई होगा ही नहीं ना और ज्यादा हाइड्रोलिसिस, और ये होगा undergoes more hydrolysis, more hydrolysis नहीं, undergoes hydrolysis and gives 2, 3, 4 units of sugars. Units of sugars. Noted? Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलिए, स्ट्रक्चरल फॉर्म पर आए। Yes, sir. मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताने, इपीमर्स, एनोमर्स और आइसोमर्स। इपीमर्स, एनोमर्स और आइसोमर्स, है ना? तो बहुत ध्यान रखिए बच्चों, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, मतलब बिना किसी कंफ्यूजन के। एक कार्बोनेट का स्ट्रक्चर पहले, चलिए एक कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बना दूं। छह, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया कार्बन। Yes, sir. अब यदि मैं आपसे बात कहूं तो HC डबल बॉन्ड O, HOCH, HOCH, 2 और 1 3 और 1 4, तो इसकी जरूरत नहीं है। कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4. 4। तो मैं वही सेटिस्फाई कर रहा हूं, 2 + 1 3 + 1 4, 1 + 2 + 3 + 4। हर बार कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखें।
कार्बन की वैलेंसी नीचे वाली की 4 हो रही है क्या? अरे इसकी वैलेंसी 4 हो रही है? No, sir. हो रही है दोस्त, हो रही है। No. अरे हो रही है भाई, ध्यान से देखो। अब बोलो, अब बोलो। 1 2 और Yes, 1 2 और 1 3, अग्री? Yes, sir. 3 और 1 yes, sir. 3 और 1 4। भाई इसको मैं क्या लिख सकता था? इसको मैं क्या लिख सकता था? ज्यादा से ज्यादा इसको मैं इधर लगा के एचओ जैसा एचओ लिख देता, तो 2 इधर हो जाती, 2 इधर हो जाती, 2 इधर 1 इधर 3 और 1 ये 4, तो मैंने उसको CH2H लिख दिया। अंडरस्टूड? Yes, sir. अंडरस्टूड? अरे समझ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिंपल है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन बना दिए मैंने। C6H12O6, C6H12O6। अब C6 समझ में आ गया मुझे। H12 हो रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अग्री? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ऑक्सीजन 6 है क्या? 1 2 3 4 5 and 6, अग्री? Yes, sir. Yes, yes, sir. sir. परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूं, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया सिंपल शुगर कहने के लिए। मैंने इसको लिख दिया है मैनोज। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, मैनोज। अब मैंने क्या करना है, आपको एक स्ट्रक्चर एक और स्ट्रक्चर मैंने इसके साथ बनाना, एक और स्ट्रक्चर इसके साथ मैं बनाता हूं, और आपको तब बताता हूं कि इपीमर क्या है डायग्राम बनाने के बाद। परफेक्ट। लाइक एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना देता हूं, HC डबल बॉन्ड O 2 3 4 5 6, HCOH OHCH HCOH HCOH एंड CH2OH। इसको मैंने लिख दिया ग्लूकोज, इसको मैंने लिख दिया ग्लूकोज। क्या दोनों स्ट्रक्चर में कहीं पर बच्चों फर्क दिख रहा है क्या आपको? प्लीज चेक, Yes, sir. प्लीज चेक इफ एनीवन कैन फाइंड एंड टेल मी कि कहां पर डिफरेंस दिख रहा है, या दिख रहा है या नहीं दिख रहा। Sir, on the Sir, second branch. परफेक्ट, डॉक्टर मोहाड़ीकर, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ओनली ऑन दिस पोजीशन दे आर डिफरिंग टू ईच अदर। डॉक्टर मोहाड़ीकर, अग्री? Yes, sir. सो दे आर द एपीमर्स ऑफ ईच अदर। देखिए मैंने एग्जाम्पल के बाद अब डेफिनेशन बताई। व्हाट आर द एपीमर्स? इफ एनी मोनोसैकेराइडिक यूनिट, if any monosaccharidic unit differs only at one specific carbon, only at any specific carbon, like carbon position second. If two monosaccharides like mannose and glucose are differing each other at only one position, that is position number 2, then they are the epimers of each other. So these two molecules are known as C2 epimers. रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन, आपको लिखवा भी रहा हूं, पहले इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए फिर वो बता, इसे नोट कर लीजिए फिर वो डेफिनेशन भी लिखवाता हूं।
बच्चों इसे मिटाऊं, ये फिर से रिपीट करता हूं। आमिर, अयान, समझ में आया क्या ये? आदित्य, Yes, sir. Yes, sir. हनी, ग्लोरी, एकता, कांचन, Yes, sir. Yes, यानी sir. मैं फिर से कोशिश करता हूँ, फिर समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, नो प्रॉब्लम। उन्नति, तनुजा, स्वराज, सूरज, सुहानी, Yes, sir. Yes, मैं sir. स्ट्रक्चरल पार्ट को साइन फिर से लेता हूं बेटा। रुद्र भालेराव, रुद्र, अंडरस्टूड? रुद्र Yes, sir. भालेराव, Yes, sir. बच्चे आज तो रुद्र नया टॉपिक था, तो आज कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नया टॉपिक था आपके लिए। am I right, रुद्र? Yes, sir. Yes, sir. So without any excuse आज हमें बेहतर समझना है। इसे भी मिटा दो, फिर से ही बनाता हूं। EPMers. What I told the definition? What is the definition? If any monosaccharide unit differ at only one specific position, then they are epimers. कौन बोला? So Kanchan. बहुत बढ़िया। If two monomers differs at only one specific carbon, then they are epimers. एक और डेफिनेशन लिखा देता या चलिए पहले इसके एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर दूसरे लिखते हैं, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, कि यदि एक दूसरे की एक ही पोजीशन पर है तो क्या, और यदि केवल फर्स्ट पोजीशन पर है, डिफर कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे के एनोमर्स। ये भी यहां लिखी दूं, एनोमर्स। but if differs only at C1 position, then they are anomers. परफेक्ट भाई, अब एग्जाम्पल ही लिख लेते हैं तो दिक्कत ही नहीं जाएगी अपने को। अभी हमने यहां पर बनाया था मैनोज, वन टू थ्री फोर फाइव and 6 CH2OH. Perfect. HC double bond O, then HOCH, HCOH, HCOH. This is mannose. The other one was glucose. 1, 2, 3, 4, 5, 6 CH2OH. Everything will remain same except second position, it will be like this. These are the what? These are what? Epimers. Epimers. कौन सा epimer? कौन सा epimer? C2 epimer. लेकिन अब यहीं पर एक और मैं बनाता हूं, एक और मोनोसैकेराइड यूनिट लेता हूं, गैलेक्टोज, उसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 CH2OH HC double bond O HCOH HOCH HOCH HCOH. Can you tell me if these two are epimers or not? Can you tell me these two are epimers or not? No. No, sir. No, sir. अरे हाँ भाई, अरे यार देख नहीं रहे हो तुम लोग, चेक करो जरा, इसके अलावा कहीं डिफरेंस है क्या? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में C4 के अलावा कहीं डिफरेंस है क्या? No. No, sir. अरे समझ में आ रहा है बच्चों की नहीं आ रहा है? सिंपल है यार, इपीमर मतलब भाई स्ट्रक्चर में यदि इन दोनों में यदि पूरा सेम है लेकिन एक पोजीशन ओनली एट वन एनी स्पेसिफिक कार्बन, ओनली एनी वन स्पेसिफिक कार्बन, ऐसा करते ओनली एनी वन स्पेसिफिक कार्बन, किसी भी पोजीशन पर यदि चेंज है तो वो वाला इपीमर। लाइक सेकंड पोजीशन पर तो C2 इपीमर, फोर्थ पोजीशन पर तो C4 इपीमर, और कार्बन की केवल फर्स्ट पोजीशन पर डिफर करता है तो वो कौन सा? एनोमर। अग्री? Yes, sir. समझ में Yes, आया? Yes, sir. परफेक्ट। अब एनोमर की बात कर लेते हैं। वो दो टाइप के हो गए, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा, इसकी भी डेफिनेशन में लिखा देता हूं, अल्फा एंड बीटा। OH group held by OH group held by anomeric carbon, anomeric carbon, OH group held by anomeric carbon is on the opposite side of, is on the opposite side of CH2H। यदि CH2H और OH, देखिए यहां पर अभी CH2H जिस तरफ पर है, यदि CH2H इधर और पहली पोजीशन का OH इधर, CH2OH इधर, OH इधर, यदि ये अपोजिट साइड पर है तो पहली पोजीशन का नाम कौन सा, वो कौन सा कार्बन होगा, कौन सा एनोमर होगा? Alpha. Alpha. But if OH group held by anomeric carbon, अब उसको एनोमेरिक लिखने के बजाय क्या लिख दूं मैं? C1 लिख दूं? अरे एनोमेरिक मतलब C1 लिख दूं क्योंकि केवल फर्स्ट पोजीशन पर हो सकता है। अग्री? Yes, sir. Is on the same side of CH2OH। यदि CH2OH, अभी मुझे देखकर बताइए, अभी इन सब में CH2OH राइट हैंड साइड पर है और पहली पोजीशन पर कोई चेंज नहीं, तो क्या ये एनोमेरिक कार्बन हैं क्या? नहीं. वो कौन से कार्बन से? No. Epimers. यार एपिमर्स। यदि CH2OH, जैसे अभी वो भी एग्जांपल लेते हैं, अल्फा का भी लेते हैं ना, अल्फा डी पायरेनोज, या मैं आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर बताऊं जो आपने देखा हुआ, वो आपकी डेली प्रैक्टिस में आता हो, ऐसा कोई कार्बन। जस्ट मिनट, मैं एक डायग्राम आपको देखकर बताता हूं। नहीं आएंगे आपको, उसके लिए एग्जांपल यही वाले लेने पड़ेंगे आपको, जो आपके अनयूजुअल है, जो आपने सुने हुए नहीं है बच्चों, वही एग्जांपल मुझे मिल रहे हैं, तो बेटर है मैं वही एग्जांपल बताऊं। ग्लूकोपाइरेनोज और अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ग्लूकोपाइरेनोज
और बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। कुछ कर नहीं सकते, उसको एग्जाम्पल आपको याद ही करने पड़ेंगे। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, सिर्फ पहली पोजीशन पर चेंज आएगा, और यदि अल्फा है तो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप और CH2H वाला ग्रुप अपोजिट साइड पर होगा, और यदि वो बीटा है तो वो सेम साइड पर होगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. अभी मुझे बताइए, यदि कोई ऐसा स्ट्रक्चर मैं आपको दे दूं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, Yes, sir. यदि ऐसे कुछ मैं दो स्ट्रक्चर दे दूं जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो, यदि ऐसे दो मैं मोनोमर्स आपको दे दूं जो एक दूसरे की कौन सी कैसी इमेज हो, मिरर इमेज, तो भी ये एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। अग्री? भाई मैंने इपीमर बता दिया, एनोमर बता दिया, अब मैं आपको बता रहा हूं आइसोमर्स। क्या बता रहा हूं मैं? आइसोमर्स। आइसोमर्स में आपको दो टाइप के बता रहा हूं बच्चों, ये सब एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। आइसोमर एक बता रहा हूं कैपिटल डी एंड कैपिटल एल, और एक बता रहा हूं स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। दोनों का डिफरेंस बताना चाह रहा हूं। यदि एक दूसरे की मिरर इमेज है तो वो कैपिटल डी और कैपिटल एल, एक दूसरे की मिरर इमेज है तो कैपिटल डी कैपिटल एल, बट एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। लेकिन इन पर यदि ऐसे किसी मॉलिक्यूल के सॉल्यूशन पर, आप मोनोक्रोमेटिक लाइट डालते हैं तो लाइट को रोटेट किया जाता है, इधर राइट और लेफ्ट, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सो इफ द मॉलिक्यूल इज रोटेटिंग द लाइट टुवर्ड्स clockwise, then it is small d, and if it is anti-clockwise, then it is L isomer. So it's very simple. दो चीजें लिखी है मैंने, आई होप नीचे का दिख रहा है बच्चों? No, sir. अभी दिख रहा है? Yes, sir. सिंपल दो चीजें लिखी है दोस्तों मैंने। इपीमर हो गया, कार्बन के किसी भी एक पोजीशन पर यदि वो डिफर करते हैं, बाकी सारा सेम होता है। इन दोनों में देखिए सारा सेम है, C2 पोजीशन पर चेंज है, तो इनको मैंने क्या कह दिया? C2 इपीमर। सेम टाइम पर मैंने ग्लूकोज और गैलेक्टोज को देखा तो इनमें सारा सेम है, केवल C4 पोजीशन पर चेंज है, तो इनको मैंने कह दिया C4 इपीमर। यहां तक अग्री? Yes, sir. Yes, sir. अब तीसरा मैंने बताना है आपको आइसोमर। इफ the two structures are mirror image of each other, जो इधर HOH HHOH है वो इधर और इधर की लाइन उधर, यानी राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट हो, तो एक दूसरे का मिरर इमेज। इफ दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर then these are capital D and capital L isomers. But if by using any monochromatic light, if they rotate the light into right or into left direction, clockwise or anti-clockwise, then they are D means dextrorotatory and L means levorotatory. D means dextrorotatory, which is clockwise, and L means anti-clockwise, that is levorotatory. Please note. Doctors, understood? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Sir, what is sir. that monochromatic light? So small d. मोनोक्रोमेटिक लाइट एक लाइट जिसमें सारे कलर का मिलाकर एक कलर बनता है, दैट इज व्हाइट। पांडे जी, दैट लाइट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब अलग अलग कलर की वेवलेंथ नहीं होती, उसमें एक ही कलर की वेवलेंथ होती है जो सारे को मिलाकर होती है, दैट इज व्हाइट। पांडे जी। Yes, sir. Sir, can you define small d and L frequency Yes. isomers again? D means dextrorotatory. D means dextrorotatory and L means levorotatory. अब इसका मतलब क्या है डॉक्टर मोवाड़ीकर? मैंने आपसे कहा कि
suppose this is an ink bottle that I use, that is ink bottle. Suppose इस में solution रखा गया है किसी एक monomeric unit का. Dr. Moadikar, if this bottle contains a solution of a monosaccharide and I am giving, or I should say, like, just a minute. Can you see the slide, Dr. Moadikar? Yes, sir. Now I'm focusing this light on this bottle. Just try to understand. I'm focusing this light on this solution. This solution contains what? Monomeric unit. Agree? Yes, sir. Yes, sir. And if the solution's molecule, it rotates into right direction, ये light जो निकलेगा यहाँ से right direction में rotate करेगा, either in this direction or in this direction. Movement of molecules either in right or in left. Dr. Mohadikar. Then it will be isomers of each other, and those isomers are D and L isomers. Dr. Mohadikar. Okay, sir. Thank you. सर इस D and L isomer को कहते हैं. हाँ बोलिए. सर वो एनोमर्स में अल्फा बीटा के एग्जांपल्स क्या है सर? वो Alpha D glucopyranose and beta D glucopyranose. Glucopyranose. These are the chemicals. इस small d small l को कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर. स्मॉल डी स्मॉल एल को कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर. और कैपिटल डी कैपिटल एल मिरर इमेज होती है और ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी ऑप्टिकली या ऑप्टिकल आइसोमर्स. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. बताओ बच्चों से. Yes, sir. स्ट्रक्चरल पार्ट में मैंने आपको इपीमर, एनोमर और आइसोमर ये तीन चीजें बता दी. Yes. केमिकल पार्ट में मैंने आपको मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड बताया. अब हमें क्या करना है, एज पर एनसीईआरटी कुछ 2-3 मोनोसेकेराइड्स को एक्सप्लेन करना है और कुछ 2-3 ऑलिगोसेकेराइड को और कुछ 2-3 पॉलीसेकेराइड को एक्सप्लेन करना है. सो आई एम गोइंग टू शेयर द इमेजेस राइट अप. वो आपको, यू हैव मॉड्यूल्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स? No, sir. No, No, sir, sir. but No, Biomol- बायोमोलिक्यूल का मॉड्यूल नहीं मिला आपको? no, No, sir. Oh, No, sir. ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. व्हाट आई कैन डू, चलिए हम लिखना शुरू करते हैं, नो प्रॉब्लम. 2-2 पॉइंट्स ही तो लिखने हैं. डालते हैं हेडिंग, एक्सप्लेनेशन ऑफ सम शुगर्स. एक्सप्लेनेशन ऑफ सम शुगर्स प्लीज. Explanation of some sugars. वन बाय वन बात करते हैं. ग्लूकोज,
डी शुगर, क्या मतलब हुआ इसका? बोलिए, अभी बताया था, बोलिए। Dextro sugar. परफेक्ट, परफेक्ट। नंबर 1 एल्डो शुगर, इसका क्या मतलब बोलिए? एनीवन? अरे CHO group. HO sugar. सिंपल सी बात थी बच्चों, क्या ही गड़बड़ कर रहे हो? इतना थोड़ी भूलता है कोई आदमी। अरे ये एल्डिहाइड है और ये क्लॉकवाइज है। अरे याद आया? Yes, sir. परफेक्ट। इसे एक और नाम दिया जाता है, दैट इज ग्रेप शुगर। बस इतनी ही चीजें इसमें लिखनी थी अपनी। दूसरी बात करते हैं फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज को यदि मैं लिख दूं एल शुगर, कीटो शुगर, चलेगा? अब मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अरे यस और नो, सो तो नहीं गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 2-3 बच्चों की आवाज आ रही है। दिनेश शिंदे, एकता किधर है? हनी जैन, ईशान क्षीरसागर, जयेश बागुल, बंजारा, किधर हो भाई? अयान, अनुराधा। बेटा बात करते रहो तुम लोग। संकेत, श्रावणी, रौनक। Yes, sir. Sir, keto means कौन पूछा? Praveen sir. प्रवीण क्या ही कर रहा है तू यार? प्रवीण लेट ज्वाइन किया क्या तू? नहीं सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था इंटर। क्या disconnect हो गया मेरे भाई? तो अभी तक के मैं बता रहा था, स्ट्रक्चर मैंने शेयर किया तेरे से, तब तुझे ये समझ में आया एल्डोज? सर एल्डोज क्यों है वो? सर C1 पोजीशन पर डिफर होता है तब। अरे राम, क्या ही कर रहे हो प्रवीण भाई? हाथ जोड़ू मैं तो अब यार, कैसे पढ़ाऊं मैं तुम लोगों को? एनीवन? व्हाट इज एल्डोज एंड कीटोज शुगर? एनीवन? Simple The sugar. types of monomeric monosaccharide. Monomeric sugar. Monosaccharide. Sir, Sir, there are types monosaccharide. of monosaccharide. एल्डिहाइड और कीटो शुगर में क्या डिफरेंस है? एनीवन? Aldose sugar is Aldose of sugar CHO group and keto CHO sugar is of and C double bond O C group. double O bond. बोले यार प्रवीण भाई, एल्डोज शुगर मतलब उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, और कीटो शुगर मतलब कौन सा ग्रुप होगा? Ketone. प्रवीण, Ketone. कीटोन। सी। प्रवीण समझा? यस सर, वो कंफ्यूज हो गया था। अरे काहे को कान फ्यूज कर रहा है भैया? ना कान फ्यूज कर, ना नाक फ्यूज कर। ठीक, अब राइबोज शुगर की तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। राइबोज, राइबोज शुगर शुगर बताने की जरूरत है मुझे? नो सर। किसमें पाई जाती हैं? Nucleic acid. Nucleic acid. अरे मेरे लिखने के बाद तो पांडे जी तुम्हारी जबान चलने लगती है, मेरे लिखने के बाद चलती है पांडे जी। पहले चलाओ तो मजा आए दोस्त। संकेत बस्ते, सुहानी पाटिल, सूरज, छोड़ दियो क्या पढ़ना? उन्नति भोए, उन्नति, उन्नति आर यू देयर? उन्नति आर यू देयर? मैं रिमूव कर दूंगा बच्चों, मैं घर पे फोन कर दूंगा तुरंत यदि जवाब नहीं आया। उन्नति, तनुजा पाटिल, आर यू देयर? Yes, sir. वेदांत देवारे, Yes, sir. बच्चों तुम लोग बात करते रहो, नहीं तो क्या है, मैं तुम्हें डिस्कनेक्ट करके तुरंत घर पे फोन लगाऊंगा, है ना?
चलिए, इसके बाद सुक्रोज। डू यू नो सुक्रोज? सुक्रोज क्या होती है? अपने घर की शुगर होती है, केन शुगर, है ना? Yes, sir. Yes, sir. कमर्शियल शुगर, जिसे अपन टेबल शुगर कहते हैं ना, दैट इज कमर्शियल शुगर। अब चूंकि ये सुक्रोज मोनोसैकेराइड है कि डाइसैकेराइड? Disaccharide. डाइसैकेराइड। तो जाहिर सी बात है, दो मोनोमर की यूनिट जुड़ी होंगी इसमें, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इसमें जुड़ा होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, और इन दोनों के बीच में जाहिर सी बात है एक बॉन्ड बना होगा, तब तो डाइसैकेराइड बना होगा। उस बॉन्ड का नाम क्या है? अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक, जैसा कि प्रोटीन बनते समय पेप्टाइड बॉन्ड था, तो ग्लूकोज का बनते समय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन यदि यहीं पर, अब जिस पे मैं पूछूं उससे आना चाहिए आंसर, डॉक्टर मुआड़ीकर, यदि इसी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को मैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह देता तो गलत हो जाता, क्यों? Sir, this bond is present in DNA. परफेक्ट। कौन बोला दोस्त? Praveen, sir. कौन? Praveen Shirsat. प्रवीण शिरसाट। क्या बात है प्रवीण भाई, बहुत बढ़िया। डांटने का असर इतने जल्दी हो गया तेरे को एकदम, बहुत ही बढ़िया। डॉक्टर मुआड़ीकर, डू यू रिमेम्बर? Yes, sir. I was going to answer, but Praveen answered. So I. एन ग्लाइकोसिडिक यदि हो गया तो वो नाइट्रोजनस बेस हो गया, यानी न्यूक्लिक एसिड का बॉन्ड हो गया, Yes, sir. And और become यदि एन हटा दिया तो वो कार्बोहाइड्रेट का बॉन्ड हो गया। बस ये छोटे छोटे सवाल आने वाले हैं टेस्ट में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे जब भी पेपर होगा Yes, sir. आपका। चलिए, द अदर वन इज माल्टोज। इसको कहते हैं माल्ट शुगर। जो साबूदाना होता है अपना, बटाटा जो होता है, दैट इज माल्ट शुगर। और इसमें होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और बॉन्ड बनाते हैं अल्फा 1,4। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और दोनों जो जुड़े होते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक और मिल्क शुगर, एनीवन? मिल्क शुगर? इतना इजी करके दे रहा हूं बच्चों आपको। Sir, ये भी lactose. क्या है? डाइसैकेराइड। तो इसमें भी कितनी यूनिट होंगी? दो। एक होगी ग्लूकोज और प्लस गैलेक्टोज, और इसके बीच में भी बॉन्ड होगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और इसके बीच में बनेगा बीटा 1,4। देखो नीट के कितने सवाल हो रहे हैं, सीधा सीधा आ जाएगा। दिस बॉन्ड इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? एग्जाम्पल, सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज, वो भी कहानी खत्म। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट इन लैक्टोज माल्टोज सुक्रोज। सीधा सीधा सवाल है नीट के, इसलिए आपको लिखवा दे रहा हूं। नोटेड? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Yes.
मैं सोच रहा था कुछ न्यूमोनिक बनाने का ताकि आपको याद करवा सकूं और आप भूले नहीं उसे। लाइक मैं ये सोच रहा हूं AMBL SAB। देखिए न्यूमोनिक जैसा अपन एक बनाया था ना कल्लू पहलवान, याद है किसी को? Yes, sir. Yes, कल्लू sir. पहलवान। An order for aiding. Gully service. Yes. तो प्रतीक्षा मैडम इसका भी ऐसा कुछ बनाते हैं, अल्फा इन माल्टोस, बीटा इन लैक्टोस एंड इन सुक्रोज अल्फा बीटा बोथ। इसका कुछ बनाया जाए। ओके, बहुत बढ़िया। सब ब्लेम, ब्लेम देखो BLAM, सब मुझे ही ब्लेम करते हैं, सब मुझे ही ब्लेम करते हैं। सब से याद आ जाएगा सुक्रोज में अल्फा बीटा दोनों है, सब मुझे ही ब्लेम करते हैं। ब्लेम मतलब बीटा इन लैक्टोज एंड अल्फा इन माल्टोज। अग्री? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें अपन ने इसको कर लिया भैया, सब मुझे ही का अपने को जरूरत नहीं है, मुझे ही ब्लेम करते हैं। अब हालांकि अपने को ब्लेम की स्पेलिंग में ये नहीं लगाना है, लेकिन ठीक है, अपने को याद रखने से मतलब है, सब मुझे ही ब्लेम करते हैं, है ना? याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही ग्लोरी मैडम समझ में आ रहा है? Yes, sir. परफेक्ट। चलिए, अब मैंने पहले 3 बता दिए आपको, मोनोसैकेराइड, दूसरे 3 बता दिए मैंने डाइसैकेराइड। ये सारी यहां तक की कहानी किसकी थी? मोनो। उसके बाद की कहानी किसकी हो गई? डाइसैकेराइड। अब कहानी आती है किसकी? क्या बचा अब? पॉलीसैकेराइड। Polysaccharides. पॉलीसैकेराइड में भी 2-3 जो काम के हम वो ले लेते हैं, लाइक स्टार्च ले लेते हैं, 8 नंबर पर ग्लाइकोजन ले लेते हैं, और 9th नंबर पर सेल्यूलोज ले लेते हैं। ये बड़े काम की चीजें थी। और एनसीईआरटी में एक और दिया तो शायद वो भी लेना पड़े आपको, दैट इज इन्यूलिन, क्योंकि बहुत बार आया है इन्यूलिन। तो 10th नंबर पर ले लेते हैं इन्यूलिन। ये 4, तो 3 मोनोसैकेराइड हो गए, 3 ऑलिगो हो गए और 3 पॉलीसैकेराइड कर लेते हैं। परफेक्ट। टाइम ज्यादा हो रहा है, बोर तो नहीं हो गए बच्चों? बस छोड़ रहा हूँ 5 मिनट, Right, sir. No, sir. 5 मिनट में छोड़ रहा हूँ। स्टार्च की यदि बात करते हैं, सबको पता है कि स्टार्च किसमें मिलता है? प्लांट प्रोडक्ट है। अग्री? Yes, sir. अग्री? Yes, sir. चलिए, अब यदि स्टार्च की मैं बात करूं, Yes. तो स्टार्च का फॉर्मूला एनसीईआरटी में भी दिया गया है, और मैं उसमें आपको लिखाऊं तो अल्फा 14 एंड अल्फा 16, also called as एमाइलम। इसका दूसरा नाम है एमाइलम। परफेक्ट। और ये जुड़ा होता है अल्फा 14 एंड अल्फा 16, अल्फा 14 एंड अल्फा 16, ये बॉन्डिंग होती है इसमें। जैसे मैंने उसका बनाया है, आप पॉलीसैकेराइड का भी कुछ बना लेंगे। मैंने डाइसैकेराइड का तो बनवा दिया आपसे, आप पॉलीसैकेराइड का आप लोग बना लेंगे कुछ। अल्फा 14 एंड अल्फा 16 बॉन्ड इसमें स्टार्च में। ग्लाइकोजन की बात करें तो अल्फा 14 और अल्फा 16 इसमें भी वही है, अल्फा 14 एंड अल्फा 16। ये प्लांट का पार्ट है, स्टार्च किसका पार्ट है? प्लांट। और Glycogen animal. इसमें वही बात है, अल्फा 14 एंड अल्फा 16। तो इसमें दिक्कत ही नहीं याद करने में, बस प्लांट और एनिमल हो तो सबको याद रहता है। बात आती है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है तो इसमें बीटा 14 ग्लाइकोसिडिक,
क्योंकि ये एक ही यूनिट का बना हुआ है, तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक। याद रखना बड़ा आसान है। प्लांट का पार्ट है तो अल्फा 1,4 अल्फा 1,6, लेकिन प्लांट एनिमल का पार्ट है तो सेम अल्फा 1,4 अल्फा 1,6। यदि सेलुलोज वाली बात है तो दैट इज बीटा 1,4। और एनसीईआरटी का स्टेटमेंट, स्टार्च कैन होल्ड 100% नीट iodine because of its helical structure. Starch can hold iodine because of its helical structure. Bold iodine मतलब आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, स्टार्च का टेस्ट करने के लिए आपने आयोडीन का टेस्ट किया था। Do you remember? Important, sir. Yes. Yes. उस एक्सपेरिमेंट में आयोडीन स्टार्च के साथ थोड़ा सा ब्लूइश कलर वो दे देता था, क्योंकि स्टार्च उसको होल्ड कर सकता। लेकिन जहां तक बात है बच्चों सेलुलोज की, तो मैं आपको लिखाना चाहूंगा कांट होल्ड I2, कांट होल्ड I2। इसीलिए स्टार्च के साथ ब्लू कलर नहीं देता। और रहा सवाल इन्यूलिन, तो इन्यूलिन में भैया बीटा 1,4 इन्यूलिन, जैसे ये सेलुलोज प्लांट का वैसे ये इन्यूलिन एनिमल का, तो ये बीटा 1,4। बस सिंपल। और यही नीट के सवाल हैं सब। बड़े काम का ये जो पेज अभी बोर्ड पर मैं शेयर कर रहा हूं बच्चों, ये बड़े काम की चीज, बहुत काम की चीज। नोटेड? Yes, sir. What is Yes, that? sir. आपको क्लास छोड़ने के पहले एक और इंफॉर्मेशन पार्ट, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि फिर छूट जाएगा नहीं तो मुझसे, अदरवाइज अपना कार्बोहाइड्रेट का पार्ट खत्म। रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होती है जिसमें फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप होता है। Turn group. जिसमें फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप होगा वो रिड्यूसिंग शुगर, जिसमें नहीं होगा नॉट फ्री ग्रुप, जिसमें फ्री ग्रुप नहीं होगा वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इसे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर की टेंडेंसी ये होती है कि किसी मेटालिक सॉल्ट सॉल्यूशन से, लाइक कॉपर सल्फेट या जिंक सल्फेट, किसी मेटल के सॉल्यूशन से मेटल को अलग कर देने की टेंडेंसी जिसमें होगी वो शुगर रिड्यूसिंग शुगर होगी। रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, यदि फ्री ग्रुप है देन इट कैन रिड्यूस मेटल फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। देखिए बात को समझिए क्या बोल रहा हूं मैं। एक शुगर होती है रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि एनसीईआरटी में वर्ड मुझे दिख गया। एक शुगर है रिड्यूसिंग शुगर, एक है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यदि किसी केमिकल कंपाउंड में किसी सैकेराइड की यूनिट में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री ग्रुप है तो वो शुगर रिड्यूसिंग शुगर, और उसकी वजह से वो किसी भी मेटल को उसके सॉल्यूशन से, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिड्यूस करके अलग कर सकती है। ZnSO4 से जिंक अलग, कॉपर सल्फेट से कॉपर अलग। यदि ऐसा कर सकती है तो वो जस्ट बिकॉज कि उसके पास वो फ्री शुगर, फ्री ग्रुप है, और ऐसी शुगर रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी। सुहानी, श्रावणी, संकेत, समृद्धि, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Doctors understood? Yes, sir. Yes, sir. So that's all at my part for one more biomolecule, that is carbohydrate. Protein, amino acid, enzyme, nucleic acid, and now today it is carbohydrate. Only one is left, that is lipid. Lipid. लिपिड बताऊंगा, फिर कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बताऊंगा,
और आप देखिएगा बायोमोलिक्यूल का चैप्टर अपना डन. देन वी विल स्टार्ट फॉर ह्यूमन फिजियोलॉजी. एनी डाउट इन टुडे सेशन? No, sir. Excuse me, sir. No, sir. Any doubt in today's session? Sir, हाँ बोलिए. sir, what is that beta 1,4 in inulin 10th number? बीटा 1,4 अरे बॉन्ड का नाम है भाई पांडे जी. अरे जैसे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना Yes, sir. पांडे जी, समझे? Yes, sir. जैसे अल्फा 1,4 है बेटा, वैसे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिड. फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन के बीच में बॉन्डिंग हुई है. 1,4 अंडरस्टूड? नहीं sir, what is that written? Which name? Which one? ये वाला. हाँ, yes sir. अरे ग्लाइकोसिडिक भाई, थोड़ी सी मेरी बात को, भावनाओं को समझा कर दोस्त. ग्लाइकोसिडिक, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ओके पांडे जी, समझे? Yes, sir. चलिए. प्रतीक्षा, परी, Yes, अंडरस्टूड? Yes, sir. परफेक्ट परफेक्ट. चलिए. आई होप. Excuse me, sir. यस, एक्सक्यूज्ड. Sir, if starch can hold iodine, then glycogen can also hold it or not? If starch can hold iodine, ठीक पूछा सवाल. यदि स्टार्च होल्ड कर सकता है तो ग्लाइकोजन होल्ड करेगा क्या? इज इट? Yes, sir. ग्लाइकोजन को होल्ड करने की जरूरत तो टेस्टिंग की जरूरत ही नहीं ना दोस्त, क्योंकि अपने को ग्लाइकोजन ह्यूमन एनिमल बॉडी का है. अग्री? Yes, sir. अग्री? सो इस पर सवाल ही नहीं बनता कि वो होल्ड करेगा या नहीं करेगा. यस इट कैन, क्योंकि इसका भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, बट जरूरत नहीं है. अंडरस्टूड? Yes, sir. Right. Thank you. चलिए. एनी मोर डाउट? एनी मोर डाउट दोस्तों? No, sir. No, sir. Finally, No, going to sir. close the session. See you in the very next class with lipid and secondary metabolites, and that's all. Then we'll switch to human physiology. All the best. Thank you, sir. Okay, welcome.